ایک طرف بہت بڑی جھیل تھی، دوسری طرف جنگل تھا، سنسان سڑک تھی جو یونیورسٹی سے ان کے ہاسٹل کیمپس کو جاتا. تو ہمارے آگے ایک اور گاڑی تھی، بس ساری سڑک سنسان اور ویران، اور وہ گاڑی کچھ ایسی چل رہی تھی کہ نہ وہ سجے تھی نہ کھبے تھی، کچھ درمیان میں چلی جاتی. اور میرا بیٹا بھی بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے، وہ اس گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یار تو کیا کر رہا ہے اس کو گزرو. کہنے گا اچھا ابھی گزر گیا. میں نے کہا اس کو ہارن دو. کہنے گا جی میں اچھا چیز دیتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوں اس کے رویے پر. بڑا اچھا ماشاء اللہ تگڑا نوجوان تھا. یہاں دو گڈیاں مٹکڑے مار کے توڑ دے رہا یہ کچھ اور طرح کا. میں نے کہا نکالو اس کو. کہنے لگی بس ابھی ایک مورسا آئے گا وہاں سے نکال دیتے. تو میں نے کہا یہ تم اسے کراس کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا ابو یہ میرا کلیگ. میں نے کہا اچھا سوری وہ بڑی عمر کا آدمی تھا. میں نے کہا تمہارا پروفیسر؟ کہنے لگا نہیں پروفیسر نہیں، یہ میرا کلیگ ہے تو اس لیے میں اس کو کراس نہیں کرتا. تو کبھی کوئی کچھ جگہ آ جائے گی تو میں اسے کراس کر دوں گا. تو میں نے کہا یہ تمہارا کلیگ کس طرح سے؟ کہنے لگا وہ یہ مائی روڈ فیلو، یہ اسی سڑک کو میں استعمال کر رہا ہوں، اسی کو یہ کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے میرا کلیگ ہے کہ مجھے اچھا راستہ ملا میں اسے کراس کروں. میں نے کہا تیرا ستیاناش آ جائے، کسی بے گھر کا آدمی اس لیے بھیجا تھا یہاں پہ تو ٹکرے مار کے 2-3 موٹریں توڑ چکا ہوتا ہے. یہ کیا ملا تجھے امریکہ نکل اس سے آ گیا. تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں میں نکلوں گا، میں ایسی احتیاط کے ساتھ چلوں گا جس کا مجھ سے توقع اور تقاضا کیا جاتا ہے. تو میں اپنے بیٹے کی اس نافرمانی پہ اور اس بےغیرتی پہ اور کمی علم کی وجہ سے اتنا ناراض ہوا کہ میں اگلے دن ٹکٹ کرا کے واپس آ گیا. اس سے اب کوئی توقع نہیں. ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم والے لوگ ہیں. ہم جب تک 1-2 موٹریں توڑ کے مجھے ابھی تک اس کا بہت زیادہ افسوس ہے وہ نہیں آیا. اور اس بے ایمان کا رویہ جو ہے اس میں پاکستانی رہی نہیں. اتنا شریف آدمی ہو گیا ہے اور اتنا مہذب ہو گیا ہے کہ مجھے اسے دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہیں گئے ہم اپنا جا کے عزت کی زندگی جو ہے اب میری صرف یہ ہے کہ یہ جو ٹریفک کا معاملہ ہے، یہ ٹریفک پولیس کا معاملہ ہے، یہ خالی ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یہ ذمہ داری مہذب ملکوں میں ٹریفک چلانے والوں کی، لے جانے والوں کی ہوتی ہے. تو اب اس کا فیصلہ کرنا کافی مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں ہم غیرت مند لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، ہم ان اصولوں کو نہیں اپنا سکتے. وہ پلپلے لوگوں کے اور گورے لوگوں کے اصول ہوتے ہیں. ہم طاقتور اور غیرت مند قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم اپنے اصولوں پر ہی قائم رہیں گے اور اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کے لیے چونکہ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو 2-3 اور واقعہ ایسے ہی سناتا. اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. خواتین حضرات، محفل کے آغاز میں ایس پی ٹریفک کیپٹن محمد امین نے ہم سے باتیں کی تھیں. ایک تو وہ کیپٹن ہے، اس کے اوپر ایس پی بھی ہیں، تو یہ یکنش و جوش والا معاملہ ہو گیا. انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مقررین ان سے متاثر ہو کر گفتگو کرتے رہے. خواتین حضرات، اب یہ موقع ہے میرے لیے کہ میں ڈی آئی جی ٹریفک الطاف قمر صاحب کو آواز دوں، جن کے لیے کہا گیا کہ وہ ہماری برادری کے آدمی بھی ہیں، لکھنے پڑھنے سے ان کا ذوق ہے. اور یہ عجیب خوش قسمتی کی بات ہے کہ اوپر تلے کئی آئی جی ڈی آئی جی ایسے آ رہے ہیں جن کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. یہ سعادت کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتری کے معاملات ہوں گے. جناب الطاف قمر صاحب. یہ تالیاں میرے لیے کیا جیسے
जनाब सदर आपकी इजाज़त से करूँगा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हम वैसे भी आज सुनने के लिए आए हैं, हम तो अपने सुनाते रहते हैं, कहते रहते हैं। अहले दानिश को बुलाया था, अहले कलम को बुलाया है, इल्म फन के जानने वालों को और पहचानने वालों को बुलाया है। तो हमको उनके मोती, उनकी गुलफशानियाँ देखने, सुनने और चुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं और तवक्को रखते हैं और आप उम्मीद रखें कि जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ हमने नोट किया है, उस पर अमल करेंगे। उसमें से जो हमारे करने वाली चीज़ें हैं वो हम करेंगे, जो पहुंचाने वाली हैं वो पहुंचाएंगे। जो कुछ मैं 2-4 बातें कहना चाहता था वो मेरे से पहले मेरे कुलीग एसपी साहब ट्रैफिक ने कह दी हैं। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा, आप सबका टाइम भी कम है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के बहुत बड़े असासे पेशदार साहब का जी, उनकी एक बात से इंस्पायर होकर एक आध बात सिर्फ कहता चलूँ, वरना कहने की एक गुंजाइश नहीं है। सब कुछ कहा जा चुका, सब कुछ सुना जा चुका। हमारे मुफक्कर आईजी साहब ने कहा था कि रास्ते टेढ़े हों तो कोई सीधा चल नहीं सकता। ये बड़ी वजनदार बात थी, बड़ी मायने बात थी। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि रास्ते टेढ़े हों और फिर वो टूटे फूटे हों और फिर वो आधे रुके हुए हों, फिर उस पर चलने वाली गाड़ियाँ टूटी फूटी हों और कोई दावता ना हो और दावतों की और निगरानी करने वाले बूढ़े लंगड़े हों, तो फिर रास्ते में रह जाते हैं, मंजिलों पे नहीं पहुंचा जाते। सड़कें टूटी फूटी बंद हो, वो गूंगी हों, तो कोई कैसे चले? ड्राइवर को राह कौन दिखाए? तो अरबाब इख्तियार बैठे हैं। सड़कें सही होनी चाहिए, बोलती होनी चाहिए। सड़कें बोल ना रही हों, समझा ना रही हों, तो ड्राइवर का क्या कसूर? फिर दावते होते हैं, चलाने वाला ड्राइवर चला रहा हो, चलाने वाला वो ड्राइव लेकर चला रहा हो, दावते उसे छकड़ों रेड़ों की कैटेगरी में रख रहे हों, तो बात कैसे चलेगी? फिर लाखों गाड़ियां चल रही हों और चंद 100 या चंद 1000 बंदों को कहा जाए कि इनको रेगुलेट कर दो, तो भाई कैसे? मैं अहले दानिश को और मेरे जो साथी रहते हैं उनको मैं एक आध बात बताना चाहूँगा, तफसील में जा नहीं सकता, वक्त कम है। कि जनाब पंजाब में 70,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिनके ऊपर 70,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के ऊपर 30 लाख मोटराइज और 40 लाख साइकिल, गड्ढे, रेड़े, टांगे और हाथ गाड़ियां चल रही हैं इस वक्त। और आप हैरान होंगे सुन के कि 70,000 किलोमीटर सड़कों और 60 लाख मोटराइज और नॉन मोटराइज गाड़ियों को उनके ऊपर डिसिप्लिन से चलाने के लिए पूरे पंजाब में जो ट्रैफिक पुलिस की नगरी है वो है 3,000 नातवा कंधों पे, जिनमें से आधे ट्रैफिक की फील्ड ड्यूटी के लिए दस्तियाब होते हैं, आधे तो दफ्तरों में काम करते हैं, छुट्टी पे किसी में होते हैं, इसी में बीमार भी शामिल हैं। तो 1,500 या 2,000 नातवा कंधे जो हैं उन्हें कहा गया है कि 70,000 किलोमीटर सड़कों के ऊपर 70 लाख गाड़ियों को संभालो। और फिर बेसरो सामानी ये है कि सर कि हर 6 इंस्पेक्टरों में से एक के पास गाड़ी है सरकारी, बाकी 5 इंस्पेक्टर पैदल हैं। अब बताइए वो 5 इंस्पेक्टर जो पैदल हैं वो क्या करेंगे? और फिर जो बाकी हमारे सार्जेंट हैं
उनमें से हर 4 में से 1 के पास मोटरसाइकिल है, बाकी पैदल है। और फिर मेरे ये जो छोटे भाई हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, इनको सरकार को साल में 3 वर्दियां देनी होती हैं, किसी एक साल की याद कर इनको 2 वर्दियां देनी है। ये 8 घंटे नहीं 16 घंटे ड्यूटी करते हैं। वो जो गर्मियों में अपनी गाड़ियों के शीशे नीचे निकलना चाहते कि लू आती है, उनकी ठंडक में कमी आती है, वो उनके पास से गुजरते हुए धुएं के भगोगे के मुंह में फेंकते। और ये सर्दी गर्मी और बारिश आंधी धुंध हो जाए, कैसा भी मौसम हो, ये बगैर छाए के बगैर किसी शेल्टर के खड़े होते हैं। इनको घरों से उठाने, घरों पे पहुंचाने के लिए भी हमारे पास पुलिस वाले, आप हैरान होंगे कि ट्रैफिक पुलिस के पास पूरे पंजाब में एक बात सिर्फ ये बेसरो सामानी है जिसके साथ हमें काम करना पड़ता है। और जो ज़ाब्ते हैं, जो कानून है आज का, जिसे लेके हम चाहते हैं हम किसी सदी में दाखिल हों, उसकी हालत ये है सर कि तेज रफ्तारी जिसका अंजाम तेज रफ्तारी, जिसका अंजाम हादसा, और हादसे का अंजाम जानों का अंजाम। इस तेज रफ्तारी की सजा इस कानून में ज्यादा से ज्यादा इस हो गया है। अगर आप ज़हनी या जिस्मानी तौर पर गाड़ी चलाने के फिट नहीं है, नाअहल है किसी वक्त, और फिर भी आप गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये की सजा है जुर्माने की। जहां सड़क के ऊपर हादसे में अगर कोई जान गायब हो जाए तो उसका मुआवजा 10,000 रुपये। ये वो लंगड़ा कानून है, फरसूदा कानून है, जिसको ये नातवान फोर्स दे के ट्रैफिक सीधी करने चाहिए। और फिर उसके बाद जो हमारे रवैये हैं, जिस शऊर की बात हम कर रहे हैं कि नए शऊर के साथ 21वीं सदी में दाखिल होना है, वो शऊर जैसा कहता है वो हमें आप सबको मालूम है। जुर्माना 100 रुपया हो या 1000 रुपये, बात तो ये है कि हम खिलाफ वर्जी करेंगे। 100 रुपये 1000 रुपये की बात नहीं, बात रवैये की है। ये सिर्फ गति है, किसे नहीं पता, इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चों को भी पता है कि सिर्फ गति पे रुकना है और टीवी पे तैयार होना है और हरी पे चल पड़ना है। अब ये बात को समझाने वाली है, किसको नहीं पता। इसके ऊपर आप क्यों चाहते हैं कि जुर्माना 1000 का रख के आपको या 6 महीने के लिए आपको बंद कर दिया जाए? क्यों बना? बाशऊर लोग डंडा देख के तो नहीं अमल करते, तो शऊर तो अंदर से निकलता है, वो तो खुद तरबियत करता है अंदर से। ये सजाएं, ये पुलिस, ये तो डंडे की रामत है। डंडा क्यों? डंडा क्यों खाए? डंडा क्यों इस्तेमाल करें? क्या हम बेशऊर हैं? दिमाग नहीं रखते हम? तो सजाएं जजाएं ये तौहीन है इंसानियत की। बेहतर शऊर के साथ हम अगर ट्रैफिक के लिए निकलेंगे, सड़क से निकलेंगे, घर से निकलेंगे, तो ये सजाएं और जजाएं जो है ये दरी के दरी रह जानी चाहिए। हम एक बाशऊर कौम का होने का सबूत देते हुए हमें अपने आप में रवैयों में इस्लाह करनी है। मुझे इशफाक साहब की, मैं तो उनका मज़ाक हूँ, हम तो इनके जौहर बारे पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमसे इंस्पायर होते हैं। मेरी बड़ी खुशबख्ती थी कि मैं आज उनके साथ यहाँ बैठा हुआ। मैं साहब कहा था, उन्होंने ये बड़ी सही बात कही थी कि ट्रैफिक के ठीक होने का ट्रैफिक पुलिस से तो ताल्लुक ही नहीं है। ये तो गाड़ी चलाने वालों के अपने रवैयों की बात है। गाड़ी चलाने वाले अपने रवैये ठीक रखें, ट्रैफिक के कवानीन ठीक करें और सड़कें ठीक हों, दावतें ठीक हों, तो फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस बाकी रहनी नहीं है। ये तो सर्वसंघ के लिए होनी चाहिए।
कि जिसके दिमाग में कोई कसूर है और वो जानते बुझ इशारा कागज को पकड़ तो सब बात छोड़ दो, उसके लिए तो किसी डंडे वाले की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आपकी खुशी के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि गवर्नमेंट ने इस बात का नोटिस दिया हुआ है। ये जो ट्रैफिक के कानून जिसकी मैंने बात की है मसूदा कवानीन की, इसकी जगह पे एक दूसरा कानून हमने तैयार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने महकमा दाखिला के ताउन से एक मसौदा कानून नया हमने तैयार किया हुआ है। वो मंजूरी के लिए गवर्नमेंट के पास है। उसने फिर जिसे इन्होंने फरमाया उसने फिर बिल्कुल वही बात है कि जो सड़क पे छूटेगा उसका भी चालान होगा। जो डब्बा फेंकेगा, सिगरेट की दिज्जत फेंकेगा, कोई और या अपने घर से बाहर कूड़ा फेंकेगा उसका भी चालान होगा। और फिर उसमें ओवरलोडिंग करने वाले के साथ साथ जो ओवरलोड हो रहा है उसको भी साथ ही पकड़ेंगे। इसलिए कि ओवरलोड आपको कोई जबरदस्ती पकड़ नहीं कर रहा, सवाल आप खुशी से होते हैं और फिर रोते हैं, फिर गालियां पुलिस को देते हैं। फिर हम आपसे भी पूछेंगे भाई तुम्हें तकलीफ क्या, तुम छत के ऊपर चढ़ गए हो, पीछे लटक गए हो, दबा देंगे या चुरी गए, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो हमने बिल्कुल नई तहजीब के और मजहब अक़वाम जो आज क्या कहलाई जाती हैं उनके ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक हमने वो लॉ तैयार किया है। वहाँ पे सर जिसमें ये भी है कि अगर सड़क की खराबी या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी की वजह से किसी गाड़ी का नुकसान होता है तो वो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार रखा है उसकी गाड़ी के नुकसान हुआ है। फिर ये नहीं है कि बंद रोड 3 सालों से खुदी बड़ी हो, वहाँ गाड़ी चल ना सकती हो, वहाँ गाड़ी चले तो उसके एक्सेल टूट जाते हों और हम शो भी मचाए चले जाए ट्रैफिक पुलिस वाले को ठीक करो वो ठीक ना हो। फिर वहाँ किसी गाड़ी का अगर नुकसान होगा तो वो महकमा का जिम्मेदार होगा जो गाड़ी जो सड़क ठीक करने का जिम्मेदार है। इसके साथ मैं अपनी ये कड़ी कसीरी बातें जिसका मौका नहीं था खत्म करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने इतने अहले दाना शहर कलम मुफक्कर हम दरमियान बैठे हैं और फिर इतने हमारे दोस्त तशरीफ लाए हैं। मैं उन कॉलेज और स्कूलों के साथदा और उनके तालिब इल्मों से 10 रास्ता उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत पे इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए। मैं तमाम मुंतज़मीन का और तमाम इदारों का जिन्होंने इस सेमिनार को इतना कामयाब किया इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो किस तरह और जगहों पर और सेमिनार में मुलाकातें होंगी। खुदा बहुत शुक्रिया हजरात। ये एक खुशखबरी होती है कि कहा जाए कि फलां आदमी वजीर है और वो पढ़ा लिखा भी है। हजरात मैं इसी सरखुशी में जनाब शफकत महमूद साहब को खिताब करने की दावत देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अल्ताफ कमर साहब, अशफाक अहमद साहब, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, साथिया कराम, स्कूलों के बच्चे, मैं भी सोच रहा था बैठा कि हमारा मुस्तक़बिल जिसके बारे में यकीनन हम सब फिक्रमंद रहते हैं, इसलिए पुरुद है कि पिछले और उसकी एक झलक तो ये है कि पिछले 3 घंटे से यहाँ स्कूलों के बच्चे बड़े आराम से बड़े सुकून से बैठे इस सेमिनार को, उसके 3.5 घंटे हो गए हैं, 3.5 घंटे से बैठे इस सेमिनार को सुन रहे हैं। एक तो मैं उनके साथिया कराम उनको हमारे बात पेश करता हूँ तो उन्होंने बच्चों को ये डिसिप्लिन, ये नज़म, ये तंजीम की तरबियत दी है और साथ साथ मैं उन बच्चों को भी हमारे बात पेश करता हूँ।
شاید دوسری وجہ یہ ہے کہ آئندہ یہ بچے بڑے ہو کر سڑکوں پر آئیں گے، امید ہے بڑے ہو کر آئیں گے، چھوٹے ہوتے نہیں آ جائیں گے، گاڑیاں چلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آج ہوا ہے یہ ان کے ذہن میں رہے گا، اور جو اصول جن کے بارے میں آج بات ہوئی ہے وہ اس پر کاربان رہیں گے۔ میں الطاف قمر صاحب کو اور ٹریفک پولیس کو، ایس پی ٹریفک لاہور کو اور جتنے ٹریفک پولیس کے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سیمینار کا ہم نے اہتمام کیا۔ پبلک اویئرنیس ایک بہت ضروری جزء ہے یہ جو ٹریفک اور ٹریفک اصولوں کی پابندی ہے، ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے جو پبلک اویئرنیس ہے یہ بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کا سیمینار جو ہے وہ بہت ضروری تھا، اور آپ نے تو نہ صرف اتنا کامیاب سا سیمینار کیا، اتنا ہال جو ہے یہ فل تھا، میرا تو خیال تھا کہ ٹریفک کے سیمینار میں کون آئے گا، لیکن یہاں بہت بڑی پارٹیسپیٹ